اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیما فآوی۔ سب سے پہلے ناظرین کی خدمت میں، علماء کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آج کی المناک مصیبت پر سرکار امام زمانہ علیہ السلام، مہاراج کرام اور مومنین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ جناب ابو طالب کے سلسلے سے یہ پروگرام برگزار کیا گیا ہے۔ دو مختصر وقت میں دو لفظ کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں امت مسلمہ کو۔ ایک لفظ جو ہے محسن ہے، ایک ناصر ہے۔ جناب ابو طالب محسن اسلام اور ناصر رسول ہے۔ جناب ابو طالب کی شخصیت اور آپ کا ایمان، ہر منصف مزاج جس طریقے سے بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے حضرت مولانا عبید اللہ اعظمی صاحب، ایک منصفانہ گفتگو آپ نے کی اور بہت سے لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ چھوڑ دیا کہ ہم توجہ سے آئیں اور انصاف کے عینک لگا کر اگر شخصیت جناب ابو طالب پر غور کریں تو ہمیں مل جائے گا کہ معرفت رسالت، معرفت نبوت کے آئیڈیل کا نام جناب ابو طالب ہے، محسن اسلام کا نام جناب ابو طالب ہے، ناصر رسول، ناصر دین کا نام جو ہے جناب ابو طالب ہے۔ جیسا کہ واضح ہے کہ پیغمبر اکرم کی کفالت، پیغمبر اکرم کی حفاظت آپ کی ذات نے کیا، اور یہ پورا گھرانہ جناب عبد المطلب کا پیغمبر کی بعثت سے پہلے دین ابراہیم پر تھا، اور کوئی ایسی جھوٹی سے جھوٹی روایت نہیں ملتی کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ نعوذ باللہ جناب ابو طالب نے کوئی بت پرستی کی ہو اور اس فکر کو آگے بڑھایا ہو۔ تو لہذا جناب ابو طالب کے سلسلے سے آپ یہی دیکھیے، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، اے پیغمبر، آپ کو جب ہم نے یتیم پایا تو پناہ نہیں دی۔ آپ دیکھیے پیغمبر اکرم نے جب پرچم توحید کو بلند فرمایا تو تمام اہل مکہ نے آپ کا بائیکاٹ کیا، آپ کو اذیتیں پہنچائیں۔ اس وقت قرآن مجید میں یہ آیت بتا رہی ہے خداوند عالم نے جو پناہ دی ہے اس کائنات میں جناب ابو طالب کے ذریعے سے، جناب ابو طالب کا فعل، جناب ابو طالب کی نصرت کو خداوند عالم اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ یہیں سے اندازہ مسلمانوں کو لگانا چاہیے کہ جناب ابو طالب کے فعل کو، جناب ابو طالب کی نے جو چیزیں پیغمبر کی خدمت میں اپنی قربانی دی ہے، تمام جو ہے آپ سرداران قریش میں سے، آپ کا ایک مقام، آپ کی ایک عزت تھی، تمام چیزوں کو داؤں پر لگا دیا دین کی نصرت کرنے میں، دین کی مدد کرنے میں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ جناب ابو طالب فقط یہ نہیں کہ بات کی ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے، بلکہ جناب ابو طالب نے پیغمبر اکرم کو نبی کی کفالت بھی کی، حفاظت بھی کی، نصرت بھی کی، اور یہ دو چیزیں احسان اور مدد آپ کے خون میں، یہ چیز آپ کے خون میں اتر چکی تھی۔ یہی وجہ ہے ابتدائے اسلام سے لے کر روز قیامت تک خداوند عالم نے یہ دونوں چیزیں نسل جناب ابو طالب میں رکھ دیا۔ جناب ابو طالب نے بھی احسان کیا اسلام پر اور اچھائی کی دعوت دی اور حفاظت کی، اس کے بعد مولائے کائنات یہاں تک کہ یہ سلسلہ
जनाब अबू तालिब के आखिरी फर्जंद, आखिर इमाम आखिर ज़मा तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। लफ्जों को अगर मुख्तसर करके बयान किया जाए तो जनाब अबू तालिब वो हैं जो आगाज इस्लाम से लेकर अंजाम इस्लाम तक आपका खून जो है इस्लाम की नुसरत, इस्लाम की जो है मदद करता रहा। और यहीं से अगर जनाब अबू तालिब के सीरत तैयबा का हम जायजा लें, जरा सा मुतालिया करें, तो अकीदा तवस्सुल भी यहीं से हल हो जाएगा। और जैसा कि मैंने इब्तदाए कलाम में अर्ज किया कि जनाब अबू तालिब ही क्या ईमान आइडियल है, ना ये कि बात करें कि नौजुबिल्लाह जनाब अबू तालिब इस्लाम लाए, जनाब अबू तालिब इस्लाम, जनाब अबू तालिब का ईमान तमाम मोमिनीन के लिए आइडियल है। जनाब अबू तालिब का अकीदा रिसालत जो है तमाम इंसानियत के लिए क्या है, नमूना और आइडियल की हैसियत रखता है। आपके वो अशआर, आपके वो जो दीवान अबू तालिब के नाम से चीजें आई हुई हैं, उसमें देखिए कि जनाब अबू तालिब का अकीदा तवस्सुल। आज इस्लामी फिरके में एक फिरका है जो तवस्सुल की मुखालफत करता है। आइए ये अकीदा जनाब अबू तालिब से हमें मिलता है, इस अकीदे का आइडियल जनाब अबू तालिब हैं। तो जनाब अबू तालिब क्या फरमाते हैं, ये मेरा भतीजा जो है ये नबी है, इसी तरह जिस तरह अल्लाह ने जनाब मूसा को नबी बनाकर भेजा था। तो आलम इस्लाम को ये चाहिए, और इस वक्त ये तो बात यानी तारीख और हिस्ट्री से ताल्लुक रखती थी, इस वक्त हमें क्या पैगाम, क्या दर्स लेना है आज की मुनासिबत से, जनाब अबू तालिब की सीरत से हमने क्या सबक लिया, क्या दर्स लिया हमारे नौजवानों के लिए, हमारे भाइयों को क्या पैगाम मिलता है। तो जनाब अबू तालिब के आज अगर हम सबक लेना चाहें नौजवान, तो हमें जो है मारिफत रिसालत, मारिफत नबूवत, एहसान, अच्छा काम करना, इस्लाम किसी भी मसलन खतरे में हो या इस्लाम पर शुबह डाला जाए, इस्लाम की मुखालफत हो रही है, हमें जनाब अबू तालिब के ईमान से, जनाब अबू तालिब के इक़दाम से, जनाब अबू तालिब के किरदार से, जनाब अबू तालिब की सीरत व अमल से ये दर्स मिलता है कि तुम इस्लाम की हिफाजत के लिए खड़े रहो, इस्लाम के दिफा के लिए खड़े रहो, इस्लाम पर कहीं आंच न आने देना। अगर ऐसा किया तो दीन भी सलामत है, दुनिया भी जो है सलामत रहेगी। यही वजह है कि ये चीज आले अबी तालिब में, बल्कि आशिकान अबी तालिब में ये चीज रच और बस गई है। आज जहां भी इस्लाम पर साजिशें की जा रही है, इस्लाम के साफ चेहरे को बदनुमा करने की कोशिश की जा रही है। आज देखिए पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में इस्लाम का दिफा करने वाले कौन हैं, इस्लाम पर जान देने वाले कौन हैं, इस्लाम पर कुर्बान होने वाले कौन हैं। तो पूरी दुनिया, पूरी आलम इंसानियत, आलम बशरियत अगर गौर करे और मुनसिफाना गुफ्तगू करे तो सब जो है बैक जबान होकर यही कहेंगे औलाद अबू तालिब है और आशिकान औलाद अबू तालिब है। यही लोग हैं, चाहे यहूदियत से मुकाबला करना हो, चाहे ईसाइयत से मुकाबला करना हो, हर जमाने में, हर जगह पर अगर कोई, तो ये जो है बरकत खुदावंद आलम ने जनाब अबू तालिब के इखलास की वजह से इस बरकत को, यानी इस्लाम पर मरना, इस्लाम पर मिटना, इस्लाम पर कुर्बान होना, खुदावंद आलम ने ये नस्ल अबू तालिब और आशिकान अबू तालिब में रख दी है। तो लिहाजा यही एक लम्हे फिक्रिया हम देना चाहते हैं तमाम अपने मुसलमान नौजवानों को और आलम इंसानियत को कि जनाब अबू तालिब पर जो थोड़ी बहुत गुफ्तगू की जाती है, यानी एक गैर मुनसिफाना तरीके से,
वो देखें, एक दुश्मन की साजिश होती है, हमें पहचानना चाहिए। कोई भी मिशन हो, जो मुखलिसीन होते हैं उनके चेहरे को दागदार बनाने के लिए दुश्मन साजिशें करता है। जब दुश्मन ने देखा कि जब इस्लाम का बचपना था उसको जवानी तक जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पहुंचाया, और पैगंबर अकरम का देखें कि किस तरीके से, कि जिस साल आप वफात पाए हैं, जनाब खदीजा कुबरा वफात पाई हैं, उस साल को जो है आम हुज़्न करार दिया। हमारा कोई मरता है तो एक दिन गम का ऐलान करते हैं, 3 दिन ऐलान करते हैं, लेकिन ये सुन्नत रसूल है कि जब अबू तालिब जैसा मुजाहिद और जनाब खदीजा कुबरा जैसी मुखलसा इस दुनिया से जाएं, जिन्होंने इस्लाम पर तो पूरा साल जो है गम का साल का ऐलान कर दिया। माना यह था कि पूरा साल जो है गम का है, गम मनाने का है। तो हम जब गम मनाते हैं तो ये भी जो है सुन्नत रसूल है। इसी तरह इन शख्सियात की अगर कहीं पर कब्र है, चाहे जन्नत मुअल्ला में हो या जन्नतुल बकी में हो, ये तमाम आने वाली नस्ल के लिए जो है ये यादगार चीजें होती हैं। अब इंशाअल्लाह कभी किसी और मुनासिबत से इस पर बात की जाएगी, बल्कि ये सीरत उक़ला और कुरान सुन्नत से साबित है कि कब्र बनाना जायज है, और खुसूसन बुजुर्गान बरगुज़ीदा हस्तियों की कब्र को जो है, क्यों वहां कब्र पर जाके कब्र की इबादत नहीं होती, कब्र पर जाके अल्लाह की इबादत होती है और जज्बे ईमानी में इजाफा होता है। इसी के साथ हम शुक्रगुजार हैं बरादर मुहतरम हुज्जतुल इस्लाम आले जनाब मौलाना असलम साहब क़िबला का, आपकी पूरी टीम का, और जो लोग भी इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। खुदावंद आलम सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।